of trace? Small. Small. And another meaning? Trace करना से सोचो. Finding. To seek something, ठीक है? To know something. And evidence means? Proof. Proof or anything which you are perceived by all of your five senses. ठीक है? So trace evidence, the literal meaning of trace evidence is one is to seek, to work on that, and almost it is also known as a small amount, tiny residue. So both meanings are basically applicable over here. Then evidence is by all your five senses. So it is basically the collection of small amount of evidences from any type of the scene of crime by using all of your five senses, okay? And it is basically helping us in the establishment of the crime, okay? And to reach up to the criminal. So, as it is described by this term, so if anyone asks you in your viva or a small definition in your exams comes in your written paper, we are expecting such kind of definition from you people, that it is best described by any small piece of evidence that must be collected and places a suspect at the scene of crime. ठीक है? तो physical examination या physical evidence, अब इसमें जो importance है, that is the physical evidences. Because जब आपके पास evidence collection हो रही होती है, when you are in the court of law, then evidences can be of various types. Evidences can be like a person who is perceiving something, eyewitness है वो, ठीक है? He is not having any physical evidence at that time. वो eyewitness है, वो आपको अपनी जो है वो oral बता रहा है, ठीक है? Similarly, you have some documents that comes under this, ठीक है? और आपको खुद कुछ मिला है scene of crime से, तो physical evidence is under the trace evidence. कि उसको आप इकट्ठा कर रहे हो, जो आप victim, जो आप witness को trace कर रहे हो, that is not a job of any of the doctor. Obviously, criminal जो agencies होती है वो ढूंढेंगी कि कोई witness है या नहीं है, और वो physical evidence में नहीं आएगा. Here it helps in the recognition of the evidence, and it is associated with a particular person, thing, and place. Like for example, place का, जैसे I told you, which principle is basically applicable when we are tracing some evidence or collecting some evidence? There is a principle I have told you earlier. नहीं, एक principle होता है जो कहता है कि every contact leaves a trace, and it is a two-way process. Locard's exchange principle, ठीक है? ये Locard's exchange principle आपको बताएगा कि आपका, हम आगे डिस्कस करते हैं इसको. So now, as earlier I told you, कि all evidences are of two types. One is the biological evidences, and other non-biological. So what comes under biological evidences? DNA. क्या लगता है आपको biological evidences कौन कौन सी होंगी? शाबाश, ठीक है, ठीक है. और non-biological? Ring regio. Okay. So these are all the biological evidences. And your care and your preservation, all the things are different in case when you are approaching to a biological evidence or to a non-biological evidence. अब इसमें एक biological evidence नजर आ रहा है. Pick that. This is for those people जो सो रहे हो. ठीक है, अब biological हमें पता है, हम कर चुके हैं कि body fluids ये सब होते हैं, तो इसको हम बहुत डिटेल में अभी नहीं देखेंगे क्योंकि हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. हमने जो इम्पोर्टेंटली देखना है वो ये देखना है कि इनको आपने किस तरह से एविडेंस को इकट्ठा करना है और कौन सा प्रिंसिपल है. ये मैं इसलिए रीइंफोर्स कर रही हूँ, ऑल्दो वी हैव ऑलरेडी डन, बट ये एक पेट वाइवा क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है कि ओके यू आर कलेक्टिंग एविडेंसेस, या कुछ ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर आप बेस करते हो, तो वो कौन सा है? तो दैट प्रिंसिपल इज नोन एज, अभी हमने डिस्कस किया, लोकार्ड्स एक्सचेंज प्रिंसिपल. ठीक है, इसका जिसको फोरेंसिक की थोड़ी सी भी नो हाउ हो, लाइक थर्ड ईयर की बात और कुछ पता ना हो, कुछ स्पेशल बातें होती हैं जो आपको याद रहनी चाहिए. सो दिस प्रिंसिपल इज वन ऑफ देम. बॉयज कौन सा प्रिंसिपल है ये? डिफाइन इट. Every contact And it is a two-way process. ठीक है? So this was the person who devised this criminologist thing, and he says basically every contact leaves a trace, and exchange of this trace
जो भी एक लोका है, फॉर एग्जाम्पल ये एक जगह है, यहाँ पे कौन सी 3 चीजें हैं जो एक दूसरे से चीजें ट्रांसफर कर सकती हैं और ट्रेस एविडेंसेस दे सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल इन आवर क्लासरूम पर्सन टू पर्सन हो सकता है, और पर्सन टू द एनवायरनमेंट हो सकता है, एंड पर्सन टू एनी ऑब्जेक्ट इफ यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर। तो 3 चीजें हैं, इनका आपस में कनेक्शन होगा तो ऑब्वियसली एविडेंस की एक्सचेंज होगी। सो classical example of the trace evidence is a case of sexual assault where you are having a 3-way exchange process of various biological as well as non-biological evidences. In case of physical assault also you are having all 3, ठीक है, and hit and run accidents. Hit and run accident is that kind of, हमने crime scene में देखा था जहाँ हमने reconstruction of scene भी करनी होती है, ठीक है, तो according to that हम reconstruction of scene भी करते हैं। Then sexual assault में transfer of the biological material obviously हो रहा है, such as semen and blood occurs from assailant to victim, victim to assailant, ठीक है, and from assailant victim goes to the scene of crime, and from the scene of crime to this. Can anyone give elaborate it how? For example, scene of crime से आप इसे कैसे सोच सकते हो? Scene of crime से victim या assailant क्या ले सकते हैं trace evidence? फॉर एग्जाम्पल कुछ भी अपने दिमाग में सीन ऑफ क्राइम बना लो। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज गार्डन, आप सीन ऑफ क्राइम को दे सकते हैं। सीन ऑफ क्राइम से क्या ले सकते हैं? मड ले सकते हैं, ठीक है, स्टेन्स ऑफ ग्रास कैन बी देयर, एनी स्मॉल वीड कैन बी देयर, ठीक है, एंड व्हाट कैन बी except the semen, what other thing can a victim has from the assailant? Skin residues. Shabash, skin residues under the nail. That is why it is very important to collect those. So this is basically the rule which is applicable, that locus, assailant and victim. This is a 2-way process and the triangle is like this. Like you are at the scene of crime, तो आप इस तरह से चीजें लोगे, उसको फिर आप sketching करोगे, and then you have already done this in your previous lectures. So this is very important that okay, you have taken this. Now how you are going to collect it, how you are going to preserve it, and how you are going to dispatch it. This is the main concern. You are there, you are to decide either that stain is biological, okay, I am going to collect it like this, preserve it like this, dispatch it like this. This is a biological specimen, इसमें different होगा. And in biological specimen, as we told you earlier, wet stain है तो क्या करेंगे, dry stain है तो क्या करेंगे? For example, if a stain is in the dry form, इस dyes के ऊपर blood है, how would you dispatch it? नहीं, dry हुआ है बहुत ज़्यादा, scratch करेंगे स्टैम्पल से, फिर फिल्टर पेपर में डालेंगे, फिर उसे किसी टेस्ट ट्यूब या कंटेनर में डालेंगे, ठीक है? If सेम यहाँ पे पड़ा हुआ है और वो लिक्विड फॉर्म में और स्मॉल अमाउंट है, तो आपकी वाली बात होगी, ठीक है, हम एक टेस्ट ट्यूब या कुछ स्टिक लेंगे, उसके साथ हम कॉटन को लगाएंगे एंड वी रोल इट ओवर दैट एरिया सो दैट मैक्सिमम एरिया जाए, बिकॉज वी हैव वेरी टाइनी अमाउंट ऑफ दैट वेट वन। और अगर आपके पास पूल ऑफ ब्लड है, देन क्या करोगे? नहीं, पूल ऑफ ब्लड, बहुत ज्यादा ब्लड है, यू आर टेकिंग अ पेपेट, ठीक है, फिर आप टेस्ट ट्यूब में विद प्रिजर्वेटिव डाल के आप उसको भेज सकते हो। इफ द स्टेन इज on some weapon, like for example on the revolver or on the dagger or something like that, then what will you do? You will dispatch that whole article, ठीक है, पूरा article आप उसको dispatch करोगे, and if it is wet, you are going to air dry it. Never ever dispatch a thing which is wet if it is on the surface of something. Like for example, if a seminal stain is on some fabric, air dry that fabric, then polythene rag में आप इसे करते हो और वो हम पूरा प्रोसीजर देखेंगे, ठीक है? मैंने previous lecture में बताया था कि if it is on a piece of shirt, what will you do? You are going to sand the whole shirt. Why? 2 reasons है. One is for the hidden and wash stain, next is for the control. ठीक है? So these are the 2 things जो हम आपके साथ करेंगे. Now, the study of these specimens first of all requires the collection of material, then preservation, then dispatch, girls. ठीक है? इसमें हमने अब ये करना है. इसको आप डिवाइड करते हो, ये हम नहीं करेंगे, जो हम पहले कर चुके हैं, जो हमने फेजेस की थी. बट
बात करते हैं कि प्री लैब वर्क होता है, एक पोस्ट लैब वर्क, इन द लैब वर्क होता है, फिर पोस्ट लैब वर्क होता है। हमारा जो कंसर्न है वो प्री लैब से है, बट लैब वर्क का भी हमें नो हाउ होना इंपॉर्टेंट है कि लैब में जाके क्या होगा फॉर दैट। पोस्ट लैब वर्क जो होता है वो हमारे डोमेन में इतना नहीं आता। उसमें हमने कहा था कि प्री लैब में जब आप एक स्क्रीन ऑफ फ्रेम पे आते हो तो आपने फेजेस बनाए थे। एनीवन रिमेंबर दैट फेजेस? कि आप एक जगह आए हो, व्यूज वाले फेजेस थे कोई, क्या थे? रिव्यू, व्यू, क्या थे? किसी को याद हो? आप एक जगह आए, आपने स्केचिंग की, फोटोग्राफ की, ठीक है, हाँ, थोड़ा सा देखेंगे। प्री लैब स्टडी में आपने जर्नल इंस्ट्रक्शंस लेनी होती है, उसी में हम फेजेस लाते हैं। सो अगर आपके पास कोई आता है और वो कहते हैं आपने स्क्रीन ऑफ फ्रेम पे जाना है और ट्रेस एविडेंस कलेक्ट करनी है, तो द फर्स्ट स्टेप इन योर माइंड शुड बी द कंसेंट फॉर द कलेक्शन। द कंसेंट अब आपको कौन देगा उसके बारे में हम बात करते हैं। देन if it is a person who has come to you by the police or somebody else, इसमें से आपने एविडेंस लेनी है, then the identification of person. Otherwise, if you are at a spot, then identification of that spot कि इसी जगह पे आना था मुझे, ठीक है, तो वो आपके माइंड में होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। Then source of specimen कि मैंने लेना कहाँ से है। Then going to collect, उसके बाद आपने लेबल कैसे करना है, एंड दिस इज इन योर एग्जाम जो आपकी OSPI होगी उसमें भी हम आपसे ये सैंपल कलेक्शन करवा के लेबल वगैरह करवा के डिस्पैच करने का एक ऑब्जर्व स्टेशन भी होता है, ठीक है। सो देन पैकिंग एंड सीलिंग, सेफ्टी एंड स्टोरेज बाय अ टर्म जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, चेन ऑफ कस्टडी, ठीक है। देन इंफॉर्मेशन टू बी सेंट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन कि व्हाट आर द इंफॉर्मेशन यू आर गोइंग टू सेंड। फॉर एग्जांपल यू हैव टेकन इन केस ऑफ ऑटोप्सी, आपने स्टमक और ये सब निकाल के भेजा है बॉटल्स में, तो आप इंफॉर्मेशन साथ क्या भेज रहे हो उन लोगों को जिनसे आपको इंफॉर्मेशन लेनी है। फर्स्टली यू हैव टू टेल समथिंग ना, तो वो आपने कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेने होते हैं। एंड देन द ट्रांसपोर्टेशन विच इज बेसिकली बाय द पुलिस कॉन्स्टेबल्स, और वो लोग लेकर जाते हैं नॉर्मली। तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेंट की। एज यू ऑल नो आजकल का बड़ा हॉट टॉपिक है एवरीवेयर, बट इज कॉन्सेंट। सो कॉन्सेंट मीन्स to say yes. In this case basically होता क्या है कि अगर आपको ज़्यादातर पुलिस या कोर्ट उनके ऑर्डर आते हैं जो आपको ऑथराइज करते हैं कि आपने सीन ऑफ क्राइम पे जाना है, या फॉर एग्जांपल एक पर्सन आपके पास आता है जिसको पुलिस लेके आती है कि ओके यू आर गोइंग टू एग्जामिन दैट पर्सन एंड कलेक्ट द स्पेसिमेन। फॉर एग्जांपल इफ अ केस ऑफ असेलिएंट इन जनाबल जबर और रेप लेकर आया जा रहा है या विक्टिम आ रही है, इन बोथ ऑफ द केसेस यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल सी कि भाई मुझे अथॉरिटी दी है कोर्ट ने ये करने की, आई एम ऑथराइज पर्सन और नॉट। देन यू आर गोइंग टू, अगर बंदा है या बंदी है जो आपके पास आए हैं, यू आर गोइंग टू आस्क दैट पर्सन, इवन द प्रिजनर इज देयर, कि कैन आई एग्जामिन यू। और अगर वो आपको एग्जामिनेशन की अलाउ करते हैं, ओनली देन यू कैन एग्जामिन दैट पर्सन, एक्सेप्ट इन केस ऑफ रेप। Rape is a case where you can examine that assailant even without the consent. Otherwise, even the prisoners जो हैं, उनको भी आप without consent touch नहीं कर सकते। आप पुलिस को रिटर्न में दे देते हो, जबकि इंडिया के लॉ में है कि they can examine the prisoners without consent, but हमारे लॉ में है कि even the prisoners को भी आप consent के बगैर एग्जामिन नहीं कर सकते। आप लिख देते हो और फिर वो कोर्ट जिसको भी एग्जामिनेशन के लिए भेजे या कुछ हो। सो कॉन्सेंट हुआ, आपके पास कॉन्सेंट आई, ऑथराइजेशन आई, ठीक है, वो आपने सारा किया। उसके बाद आपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन बाय यूजिंग 3 मेथड्स। जी बताएं जी मुझे, व्हाट आर द 3 मेथड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन? वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। तो वेदर बॉडी इज देयर, वेदर द लिविंग पर्सन इज देयर, डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो, यू आर गोइंग टू एग्जामिन दैट पर्सन बाय दीज 3 मेथड्स। Then source of the specimen, this is a very important छोटा सा question from the trace evidence. The question comes as write down the principles of collection. ठीक है, अब ये question समझ ही नहीं आता मोस्टली बच्चों को जिन्होंने लेक्चर में ही सुना, बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ कलेक्शन आप बहुत सोचना शुरू कर देते हो, कुछ चले जाते हैं लो कार्ड्स एक्सचेंज प्रिंसिपल के ऊपर जो नो डाउट है, लेकिन वो प्रिंसिपल ऑफ कलेक्शन इज आर वेरी सिंपल। वो जिन्होंने सुन लिया होता है कि जिनके पास होती है नॉलेज थोड़ी, वो ठीक लिख देते हैं, अदरवाइज ये समझ नहीं आते। वेरी सिंपल थिंग इज व्हेन यू आर गोइंग टू कलेक्ट समथिंग, द पर्सन हु इज द कलेक्टर शुड हैव द नॉलेज कि मैं क्या कलेक्ट कर रहा हूँ, किस तरह कलेक्ट कर रहा हूँ, कितना कलेक्ट करना है, और
क्यों कलेक्ट करना है. सो द फॉलोइंग थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. द कंप्लीट हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए. देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डब्ल्यूज के साथ ज़्यादातर आप इसे ले लोगे अगर आपने याद रखने में आसानी रखनी है. सो व्हाट इज टू बी कलेक्टेड, ठीक है. देन फ्रॉम वेयर टू बी कलेक्टेड, ठीक है. हाउ एंड हाउ मच टू बी कलेक्टेड. सो ये क्वेश्चन आपके माइंड में होंगे एंड योर प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्शंस आर फ्रॉम देयर. ठीक है कि आपने क्या कलेक्ट करना है, कैसे कलेक्ट करना है, क्यों कलेक्ट करना है, कितना कलेक्ट करना है. बिकॉज इफ यू आर नॉट फुलफिलिंग दीज प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्शन तो हम एक स्पेसिमेन को अनअवेलेबल स्पेसिमेन बना देते हैं. और वो एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेंट बाय अनअवेलेबल स्पेसिमेन. कोई बता सकता है कि अनअवेलेबल स्पेसिमेन क्या होगा? शाबाश, दैट कैन बी वन टर्म. अकॉर्डिंग टू दिस ही आपने सोचना है. ठीक है, हम अभी इसको डिटेल में जानते हैं. सो दीज आर द मेथड जो आप ले रहे हो. सो अनअवेलेबल एक बहुत इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजी है बिकॉज द स्पेसिमेन इज देयर बट इट इज नॉट ऑफ एनी यूज फॉर द ट्रेस एविडेंस कलेक्शन बिकॉज आपने या तो स्पेसिमेन ठीक लिया ही नहीं. हमें एक और चीज से स्पेसिमेन चाहिए था. फॉर एग्जांपल पैथोलॉजी जो थी वो कहीं और थी, आपने किसी और को ले लिया. ठीक है. सेकेंड चीज थी सोर्स ही गलत लिया, एक बंदा ही गलत था जिससे आपने कलेक्ट कर लिया. ठीक है. थर्ड थिंग इज दैट आपने उसकी अमाउंट गलत ली. फॉर एग्जाम्पल हमें किसी चीज के लिए 30 ml कम से कम चाहिए था एंड वी हैव टेकन 10 ml जिसमें हम आगे लैब की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं कर सकेंगे. देन हमने ले लिया, कलेक्ट भी कर लिया, चीज़ें भी ठीक थी बट हमने उसकी प्रिजर्वेशन बिल्कुल ठीक से नहीं की. फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द पीपल जो हम जाएंगे ना फोरेंसिक साइंसेज लैब वो आपको बताएंगे कि जो रूरल एरियाज से, हालांकि वो लोग डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा वर्कशॉप्स कराते हैं बट वहाँ से DNA सैंपल्स कैसे आते हैं? बैम्बू स्टिक्स के ऊपर ना लगा के उन्होंने जो थोड़ी सी कॉटन या कुछ ऐसे स्वैब्स बना के वो इस तरह भेज रहे होते हैं. तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम इंफॉर्मेशन यूज हो जाती हैं. सिमिलरली हेयर स्पेसिमेन के बारे में है कि आपने रूट के साथ आपने स्पेसिमेन लेना है फॉर DNA, आपने वैसे नहीं लेना. तो कई लोग रूट के साथ प्लक नहीं करते और उसको जब तक वो नहीं आता ना उसको फ्रीज रखना होता है. आप उसे वैसे ही रख देते हो मोस्ट ऑफ द टाइम. तो वो कहते हैं कि इतना स्पेसिमेन हमारे पास आता है जिसमें से जैसे पूरा स्टमक उनको नहीं चाहिए होता. अब उन्होंने नए रूल्स दिए हैं अपने BFSA वालों ने. हम आपको दोनों इसलिए पढ़ाते हैं बिकॉज एग्जामिनर्स आपके पास समटाइम्स होते हैं, वो दोनों बातें सुनना चाहते हैं. अदरवाइज BFSA ने अपने नए रूल्स दिए हैं जहाँ पे हम रूटीन विस्टा से थोड़ा डिफरेंट तरीके से अब अपने स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं. बिकॉज वो कहते हैं कि ये चीज़ आप हमें इतनी ज़्यादा इंटरेस्टाइन भेज देते हो, हमें इतनी सी चाहिए होती है. तो वो अनअवेलेबल जो स्पेसिमेन है, जो अनवांटेड स्पेसिमेन है, वो बहुत इकट्ठा हो जाता है. ठीक है. सो डेफिनेशन ऑफ अनअवेलेबल स्पेसिमेन इज if due care is not taken, ठीक है, for the identification, type, amount, procedure of collection, preservation of the specimen is there but practically becomes unavailable because it is not fulfilling the objective of it, जो भी examination या identification. So this is basically called as unavailable specimen. यानी कि it means that examiner should know, वही वाली बात, principles उसको पता हो collect करते हुए. If he or she knows the principle, वो उसके accordingly इकट्ठा करेगी. फॉर एग्जाम्पल टॉक्सिकोलॉजी के एनालिसिस के लिए मैं कर रही हूँ. ठीक है. और मेटालिक पॉइजन मुझे एग्जैक्टली पता है कि ये नहीं है, लेकिन मैं जो हूँ कि नॉर्मल ना मैं ब्लड ले रही हूँ, ना मैं यूरिन ले रही हूँ, ना मैं स्टमक ले रही हूँ, ना मैं लिवर ले रही हूँ, ना मैं गॉल ब्लैडर, ना मैं स्प्लीन. मैं उठा के एक हेयर ले लेती हूँ जहाँ को जाना भी नहीं है, वो मेटालिक पॉइजन नहीं है. सो मैंने स्पेसिमेन भेजा लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि ये पॉइजन इस जगह जाके डिपॉजिट नहीं होगा, इसलिए यहाँ जाके डिपॉजिट होगा. तो मैंने गलत, या कुछ ऐसा न्यूरोटिक पॉइजन हैं जिनके लिए मैं लंग ले रही हूँ. ठीक है. जबकि मुझे ब्रेन लेना चाहिए था. तो दैट आर बेसिकली द रिक्वायरमेंट्स का आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज द स्पेसिमेन बिकम अनअवेलेबल. शाबाश. सो कलेक्शन आपने कर ली. अब कलेक्शन में वही बातें हम इसे इतना रिपीट नहीं करेंगे कि इफ इट इज अ ड्राई फॉर्म, वेट फॉर्म, तो आपने कैसे कैसे कलेक्ट करना है. ये वो फेजेस आ गए. ये देखो अब आपके ओवरव्यू आ गया, सर्च फेज आ गया, रिव्यू फेज आ गया. ये वही है कि आप आए हो, आपने पहले देखा है, आपने फोटोग्राफ किया है, फिर आपने क्या किया, कलेक्शंस किए, सर्च किए फिजिकली, फिर आपने दोबारा आए हो, आप वहाँ पे आपने फिर से ओवरव्यू किया है. ठीक है. और फिर रिव्यू करके आप देख रहे हो कि कुछ रह तो नहीं गया. बिफोर आफ्टर की आपके पास सारी की सारी पिक्चर्स भी होनी चाहिए. स्लाइड्स में आपके साथ शेयर कर दूँगी तो आपको ये सारा दोबारा मिल जाएगा. So these are important things when a collector is going to have
like choice of the specimen, site of the collection, procedure, preservation and container. ठीक है? Container and preservatives are very important. As I told you, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस के लिए हमारे पास प्रिजर्वेटिव कौन सा होता है और हिस्टोपैथोलॉजिकल के लिए कौन सा होता है? हिस्टोपैथोलॉजिकल के लिए कौन सा होता है ये तो पता होगा, फॉर्मेलिन, ठीक है? और टॉक्सिकोलॉजिकल के लिए सुपर सैचुरेटेड सेलर सॉल्यूशन, ठीक है? सो स्पेसिमेन मे बी प्रेजेंट इन 3 फॉर्म्स, वही बात होगी, ड्राई हो सकती है, वेट हो सकती है और मिक्स्ड फॉर्म हो सकती है. एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप उसको, जैसे आई टोल्ड यू, ड्राई होगा तो कैसे भेजेंगे, वेट होगा मैंने आपको बता दिया, और मिक्स होगा तो दोनों को अकॉर्डिंगली उनके ट्रीट करके आप फिर उसे भेजोगे. कैसे ड्राई करेंगे हम वेट स्टेन को? एयर ड्राई करेंगे. कभी भी हम उसे डायरेक्टली ड्राई करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम एयर ड्राई करेंगे. देन वी कम टू द प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज. अच्छा, अब कलेक्शन के हमारे पास क्या प्रिंसिपल्स थे? व्हाट टू कलेक्ट, where to collect, how to collect, how much to collect. ठीक है? सिमिलरली एक प्रिंसिपल्स हम अब आपसे ये भी पूछेंगे प्रिजर्वेशन की, वो हम अभी डिस्कस करते हैं. पहले हम कंटेनर की बात कर लें. ये जो मटेरियल यूज होता है कंटेनर का, दैट शुड आइडियली बी ग्लास बॉटल्स. ठीक है? ग्लास बॉटल्स इसलिए कि वो केमिकली आपके कोई रिएक्ट नहीं करेंगे. लाइक प्लास्टिक बॉटल्स हैं, कुछ कंटेनर में जब कंटेनर प्लास्टिक बॉटल के होंगे, प्लास्टिक के होंगे, तो they can react with the preservative, they can react with the toxins present in the viscera, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. सिमिलरली फॉर एग्जांपल हमारे मुल्क में टैम्परिंग के बड़े बड़े चांसेस होते हैं, तो प्लास्टिक कंटेनर से क्या हो सकता है, सिरिंज से कोई चीज़ इंजेक्ट भी की जा सकती है. बट ग्लास कंटेनर्स का एक प्रॉब्लम ये होता है कि दे आर वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल व्हेन यू आर गोइंग टू सेंड सो मेनी सैंपल्स, तो दे आर बेसिकली वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल. तो जितने भी आप लोग देखोगे जाके ऑटोप्सी और मेडिकल लीगल में, तो ज़्यादातर जो होंगे कंटेनर जो है वो प्लास्टिक के ही यूज़ हो रहे होते हैं. बट फॉर द बुक्स फॉर एग्जामिनेशन ज़्यादातर वो आप जो प्रेफरेबल लिखोगे दैट आर द ग्लास कंटेनर्स. ठीक है? फिर आ जाते हैं कोई हम प्रिजर्वेटिव की बात. हाँ, दीज आर नोन एज प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिजर्वेशन. फ्रॉम एंशिएंट एजेस देयर आर ओनली 2 ways बाय विच यू आर प्रिजर्विंग एनीथिंग. क्या करते थे पुराने ज़माने में? गोश्त को लोग कैसे प्रिजर्व करते थे? नमक लगा. जब शाबाश फ्रिज नहीं होता था, वो क्या करते थे? ड्राई करते थे. अभी भी जो आप लोग कर रहे होते हो हाइपर सेचुरेटेड सेलाइन सॉल्यूशन से, वो क्या कर रहे होते हो? डिहाइड्रेट कर रहे होते हो. ठीक है? दैट इज व्हाई आपने डिहाइड कर दिया. दूसरी चीज आपके पास क्या आ जाती है? फ्रीजिंग. सो व्हेनेवर एनीबडी आस्क्स यू व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिजर्वेशन, दैट शुड ओनली बी दीज टू. ठीक है? एक आ गया डिहाइड्रेशन, सेकेंड इज आ गया फ्रीजिंग. सो मिक्स नहीं करने, कलेक्शन के प्रिंसिपल्स W और वो वाले थे, क्वेश्चंस वाले थे, एंड प्रिजर्वेशन के जो आपके पास है वो यही है जो हमेशा से चलते आ रहे हैं. इसमें हमने मेथड्स डिफरेंट कर दी हैं. ठीक है? हमने बहुत तरह से डेसिकेशन कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन कर सकते हैं, फ्रीजिंग कैन बी फ्रॉम एनी अदर टाइप. बट अंदर से जो उनका प्रिंसिपल है, जो वे है, जो बॉटम है, वो यही है कि जो भी प्रोसीजर आप यूज कर रहे हो, एट द एंड वो डिहाइड्रेशन कर रहा है या अदर वे फ्रीजिंग कर रहा है. ठीक है? तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिजर्वेशन, दैट शुड इमीडिएटली बाय दीज टू. ठीक है? ये अब आपका क्लियर होना चाहिए आज के लेक्चर के बाद. सो प्रिजर्वेशन इन द हिस्टोपैथोलॉजी में हम कैसे करते हैं? हम फॉर्मलिन यूज करते हैं बिकॉज हमें फिक्सेशन करनी होती है. इन केस ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस, इफ यू आर यूजिंग द फॉर्मलिन, क्या होगा? फिक्स हो जाएगा. आपने जो एक्सट्रैक्ट करना होगा पॉइजन, तो नहीं कर सकते. एक टर्म होती है, शायद आपने एनाटॉमी में पढ़ी होगी, एम्बामिंग. क्या होता है? आपने प्रिजर्व करनी है ना बॉडी को, बॉडी ऑर्गन्स. अब इसमें क्या होता है कि इफ अ पर्सन इज हैविंग सम टॉक्सिकोलॉजिकल प्रॉब्लम, लाइक हमें पता है कि इसको पॉइजन दिया है, इन दैट केस उस बॉडी को आपने ट्रांसफर करना है बाहर से यहाँ, और आपको एम्बामिंग करके ही भेजना पड़ेगा. नॉर्मली हमने जिसका टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस करना होता है, हम उस बॉडी को एम्बाम नहीं करते. बट फॉर एग्जाम्पल एम्बाम नहीं कर दिया, एंड में ना कोर्ट से ऑर्डर आ गया कि नहीं भाई, इसकी तो आपने ऑटोप्सी भी करनी है और इसको आपने सैंपल भी भेजना है. इन दैट केसेस, इन दैट एम्बाम्ड बॉडी, किसी को कोई आइडिया कि कौन सा एरिया है जहाँ से हम जो है ज़रा थोड़ा सेफली पॉइजन की जो है मेटाबॉलिज्म और सब नहीं इतना इफेक्ट हुआ होगा, कहाँ से हमें सैंपल लेना चाहिए?
जहाँ पे एम्बार्मिंग फ्लूइड नहीं पहुँचा होना चाहिए आइडियली। ब्रेन एक तो ब्रेन भी हो सकता है, आइरिस भी हो सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंटली जो हम यूज़ करते हैं दैट इज द सेंट्रल बटक मसल्स जो है, वहाँ पे भी बहुत जल्दी इम्बार्मिंग फ्लूइड इस तरह नहीं पहुँचा था, तो इन एरियाज को नॉर्मली हम लेते हैं इन इम्बार्म्ड केसेस, अदरवाइज हम नहीं लेते हैं, ठीक है। सो ये आप एक देख लो बेसिकली कि एक गुड प्रिजर्वेटिव के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट वी आर प्रिजर्विंग इट फॉर द पैथोलॉजिकल थिंग, फॉर द हिस्टोपैथोलॉजिकल थिंग या केमिकल एग्जामिनेशन के लिए। केमिकल एग्जामिनेशन एंड टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस, इन दोनों में आप नॉर्मली हाइपरसैचुरेटेड यूज़ कर सकते हो, बट अगर आपने सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है इन दैट हम EDTA वगैरह जो ब्लड को लिक्विफाई रखते हैं हम वो यूज़ करते हैं। सो अ गुड प्रिजर्वेटिव के भी 2 मार्क्स का स्मॉल क्वेश्चन आ जाता है। इट शुड बी चीप, इट शुड बी इजीली अवेलेबल, सबसे इम्पॉर्टेंट इट शुड बी केमिकली इनर्ट, ठीक है, उनके साथ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करे। इट शुड बी इफेक्टिव फॉर द पर्पस, ठीक है, यानी आपने डिहाइड्रेट करना है तो वो करे उसको, आपने क्वांटिटी भी इतनी यूज़ करनी है। दैट्स वाई जब आप कंटेनर में डालते हो तो किसी को आइडिया है कि कितना प्रिजर्वेटिव डालेंगे फॉर अगर हमने स्टमक भेजना है, 2/3 भरते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा 2/3 भरते हैं, और आपका जो पूरे का पूरा जो भी स्पेसिमेन होता है वो फुली कवर्ड होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा गैसेस के लिए हमने जगह रखी होती है समटाइम्स अगर वो हमें तो। इट शुड नॉट रिएक्ट विद द कंटेनर एंड द स्पेसिमेन, ऑब्वियसली केमिकली इनर्ट होना चाहिए। So normally used for the chemical, as I told you, dehydrate करेगा, desiccate करेगा, and for the histopathological we use the formal saline. ये एक टेबल अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी पिक्चर ले लो या याद रख लो। This should be in your minds when you are going to tell about कि preserve कैसे करना है। There is a difference in the containers, there are different in the preservatives, ठीक है, और उनके अंदर जो है इस तरह से आपने कहाँ कहाँ भेजना है, तो ये तीनों में डिफरेंट है, हिस्टोपैथोलॉजिकल, केमिकल एंड सीरोलॉजिकल। डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव एंड फॉर डिफरेंट लैब्स इसको आप यूज करते हैं। फिर आपने लेबलिंग करनी होती है। लेबलिंग में आप बॉटल अगर 4-5 बॉटल्स भेज रहे हो, उनके नंबर्स होंगे, उनके ऊपर PMR नंबर होगा इन केस ऑफ ऑटोप्सी। क्या मतलब होगा PMR नंबर का? PMR नंबर किसी को आइडिया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट नंबर, ठीक है, या MLC नंबर होगा, मेडिको लीगल केस नंबर। इन केस ऑफ वॉमिटस भेजा है आपने या लिविंग पर्सन का कुछ भेजा है तो आप MLC नंबर लिखोगे, ऑटोप्सी हुई है तो आप PMR नंबर लिखोगे, ठीक है। फिर आपने कौन सा प्रिजर्वेटिव लिखा है, यूज किया है, वो बाहर मेंशन करेंगे, नेम ऑफ द स्पेसिमेन, अमाउंट ऑफ द स्पेसिमेन, क्वांटिटी ऑफ द स्पेसिमेन जो भी है वो आप लिखेंगे, डेट एंड टाइम, नेम ऑफ द पर्सन एंड एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड। ये लेबलिंग आपसे ऑब्जर्व स्टेशन में करवाई जाती है, आपको एक चिट दी जाती है, क्योंकि ये आपके पास स्पेसिमेन है, आपने इस एग्जामिनर के लिए भेजना है, डिजाइन अ लेबल फॉर दैट, ठीक है। तो ये लेबलिंग आपने यहाँ से निकाल के बतानी है। ऑब्वियसली एट द एंड जो डॉक्टर है वहाँ पे उसके साइन, उसकी स्टैम्प और उसका नाम लगेगा। देन सीलिंग इज इम्पोर्टेंट। सीलिंग का मतलब ये होता है कि आपने बंद किया है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि हर एक डिपार्टमेंट का एक मोनोग्राम होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने CMH में से देना है, हमारे पास जो डिपार्टमेंटल हमारे पास मोनोग्राम होगा उसको रेड वैक्स के अंदर लेकर हम एक सील का स्पेसिमेन अंदर डालेंगे और एक से बाहर कार्डबोर्ड के ऊपर लगाएंगे, ताकि अगर किसी ने बाहर से उसको चेंज भी किया तो जो अंदर वाली सील है वो वहाँ बता दे उसको कि भाई टेम्परिंग हुई है, अंदर से सील का डिज़ाइन ये था, तो उसके लिए उसको सील करते हैं। फिर आपने अब इंस्ट्रक्शंस बाहर भी लिखनी होती है कि भाई कीप इट अपसाइड डाउन या डोंट मूव इट, शेक इट, या जो भी इंस्ट्रक्शंस होती है वो डब्बे के बाहर भी आपने लिखनी होती है प्रॉपर। उसके बाद हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टू बी सेंट अलॉन्ग। एज आई टोल्ड यू, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि आपने साथ क्या क्या भेजना होता है। साथ आपने FIR की या MLC की कॉपी भेजनी होती है, ठीक है। एग्जामिनेशन आपको कौन सा रिक्वायर्ड है, केमिकल चाहिए, हिस्टोपैथोलॉजिकल चाहिए, आपने रिक्वेस्ट लेटर बना के उसमें लिखना होता है। आप साथ FIR तो होगी, कॉपी ऑफ द इंक्वेस्ट रिपोर्ट। ये पुलिस की था 3-4 पेजेस इकट्ठे होते हैं, वो आपके पास आए होते हैं जब आपने ये इकट्ठा किया होता है, तो उनकी कॉपीज आप साथ उनको भेजते हैं, ओरिजिनल तो ऑब्वियसली नहीं भेजते। और
एंड द रिक्वेस्ट और द सील का सैंपल, ये सब चीज़ें आपने इन डॉक्यूमेंट्स उनके साथ भेजने होते हैं जब आपने ये कोई भी स्पेसिमेन सेंड करना होता है। डिस्पैच आपने शुड बी कलेक्टेड, प्रिजर्व एंड डिस्पैच इमीडिएटली, ठीक है, आफ्टर ऑटोप्सी। ओनली कंडीशन जहाँ पे आप उसे रोक सकते हो जब कोई ऑड आवर्स है, रात को 2 बजे आपने सैंपल लिए हैं, ठीक है, आप उसे रख सकते हो, अदरवाइज उसी वक्त पुलिस के बंदे को बुला के आपने डिस्पैच करनी होती है सारी चीज़ें। सेफ स्टोरेज का मतलब होता है कि जो भी आपके स्पेसिमेन हैं दैट शुड बी अंडर अ टर्म नोन एज चेन ऑफ कस्टडी, ठीक है। चेन ऑफ कस्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आपकी स्टोरेज दोनों तरह से सेफ हो। एक तो आपने जगह पे सेफ रखना है, अगर फ्रीजिंग की ज़रूरत थी तो आपने फ्रीजर में रखना है, अगर उसे डार्क प्लेस में रखने की ज़रूरत थी तो वहाँ रखना है। सिमिलरली जो लोग इन्वॉल्व हैं स्टार्टिंग से एंड तक, दे ऑल नो अबाउट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कि कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे रखना है, कि बीच में से किसी को भी ये ना कि मुझे नहीं पता सैंपल में क्या है। एवरीवन शुड नो, और उसे ये भी पता हो कि यह आगे कहाँ जाना है और ये आया कहाँ से है, ठीक है। सो आपकी जो ये मैं आपको चेन ऑफ कस्टडी इज इम्पॉर्टेंट, वो हम देखते हैं। एनी एंड ऑल, ये डेफिनेशन भी प्लीज याद करनी है आपने। एनी एंड ऑल हैंडल द स्पेसिमेन, ठीक है, at a particular instant should be able to certify the extent of handling, that is what was collected, how it was collected, to whom it was to be handed over, ठीक है, and when it was handed over, उसको सारी बातें पता हो। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल क्या होगा चेन ऑफ कस्टडी का, जो कोई भी आपने अपना कोई काम करना हो, आप क्या चाहोगे, कितने लोग इन्वॉल्व हैं इस काम में, शॉर्टर द चेन बेटर इट इज, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो शटर होती जाएंगी, तो शॉर्टर द चेन बेटर इट इज। नॉर्मली आपके पास इसके जो प्रिंसिपल्स होंगे, ये प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट इज सीक्रेसी शुड बी मेंटेन्ड, शॉर्टर द चेन बेटर इट इज, श्योरर द चेन बेटर इट इज। तो हमने आज 3 प्रिंसिपल्स पढ़े, 4 पढ़े हैं बल्कि। वन इज लो गार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल, सेकेंड इज कलेक्शन के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए, एंड देन प्रिंसिपल्स इन द चेन ऑफ कस्टडी। तो ये हमें इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए कैसे करना है। अच्छा, फिर आप देखते हो कि अगर आपने कोई स्पेशल किस्म का जो है चीज़ भेजनी है, फॉर एग्जाम्पल ब्लड भेजना है, अब आपने भेज दिया ब्लड, हमने ड्राई फॉर्म वेट फॉर्म में भेज दिया। अब लैब में के साथ आप सीरोलॉजी शुरू करोगे तो आप देखोगे कि पहले तो किन केसेस में आपको ब्लड चाहिए, क्रिमिनल केस में चाहिए, सिविल केस में, डिफरेंट केसेस हैं जहाँ पे आपने ब्लड का एग्जामिनेशन करना है, फिजिकल असॉल्ट है, सेक्सुअल असॉल्ट है, रॉबरी भी हुई है। ब्लड इज द वेरी वेरी कॉमन थिंग जो हर जगह आपको मिलता है। लैब में आपको जो मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकल्स में भी बताया था, क्या करेंगे उस ब्लड का, सबसे पहले स्क्रीनिंग करेंगे कि इट इज़ ब्लड और नॉट, ठीक है। फिर हम उसकी अगर ब्लड है तो हम आगे चलेंगे। एक स्पेशल ड्रिल होती है जो आप लोगों की प्रैक्टिकल लेवल्स में सीरोलॉजी जहाँ पे शुरू हुई है ना, ये आपके वहाँ पे सारे ब्लड आते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको आगे कर रही हूँ। जो इम्पोर्टेंट है ना वो आप अभी यहाँ से देखोगे। ये देखो, अब ये आपकी एक ड्रिल होती है। जब आपके पास लैब में ब्लड पहुँच गया है, हमने सारा कलेक्शन प्रिजर्वेशन तक पहुँचा दिया था ना, यहाँ पे आपने प्रीलिमिनरी टेस्ट करने होते हैं, वेयर नेकेड आई एग्जामिनेशन, हैंडलेस एग्जामिनेशन, यूवी लैब एग्जामिनेशन। कैसा नजर आएगा ब्लड यूवी लैब में, डल ओपेक, ठीक है, वो सारा किया। फिर हम थोड़ी सी माइक्रोकेमिकल एग्जामिनेशन के ऊपर जाएंगे जहाँ बेंजीन टेस्ट करेंगे, फिनोल्फिन टेस्ट करेंगे, और हम करीब जाएंगे, बट दीज आर नॉट द कंफर्मेटरी टेस्ट, दीज आर द प्रीलिमिनरी टेस्ट। फिर आप आ जाते हो कंफर्मेटरी टेस्ट में जहाँ आप माइक्रोकेमिकल टेस्ट करेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, एंड ब्लड ग्रुपिंग करके आप ब्लड को एंड तक पहुँचाएंगे। सिमिलरली इन केस ऑफ सेमिनल एग्जामिनेशन, कि एग्जामिनेशन ऑफ सेमिनल हमें इन केस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन हमें उसमें भी इसी तरह से फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, देन वी लीड टू द केमिकल एग्जामिनेशन, देन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। बट व्हाट कैन बी द श्योरेस्ट एग्जामिनेशन इन केस जहाँ आप कह दो कि भाई ये है ही एग्जैक्टली सेमिनल, क्या होगा श्योरेस्ट इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपी, ठीक है, वेरी नाइस, माइक्रोस्कोपी। अब माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, वी शुड हैव द फुल फ्लेज, अगर आपके पास स्पर्म होगा ओनली देन आप माइक्रोस्कोप में उसको प्रॉपर देख सकते हैं। बट इन केस ऑफ कि देयर इज अ डाई व्हिच इज नोन एज क्यूनाक्रिन, वो एक्रोसोम के साथ रिलेटेड होती है, तो अगर सिर्फ हेड ऑफ द स्पर्म इज देयर, इवन देन यू कैन एग्जामिन, और आप श्योरली कह सकते हो कि ये ही वाला केस है, ठीक है। इसमें भी इसी तरह पूरी ड्रिल है
और आपको यूवी लैम्प में सीमेंट का स्पेसिमेन ट्रांसलूसेंट नजर आएगा, बहुत शाइनी सा नजर आएगा, वो आपको डल ओपेक नजर आया था ब्लड का, तो इसको आप इस तरह डिफरेंशिएट करोगे। अच्छा, दूसरे एग्जामिनेशन और स्क्रैपिंग में एरियाज ऑब्वियसली फ्रॉम द सोर्स, फ्रॉम दिस विक्टिम, फ्रॉम द सेलिएंट यू आर गोइंग टू टेक इट। अच्छा, इसमें जो स्लाइड है ना वो बड़ी डिफरेंट बनानी होती है इन केस ऑफ सीमेंट एग्जामिनेशन। वी आर टेकिंग द ड्रॉप, उसके बाद एक स्लाइड होती है, उसके ऊपर एक और स्लाइड रखते हैं और बीच में मैच स्टिक और फिर रबर बैंड लगाते हैं। मतलब अभी मैं आपको दिखाती हूँ, डबलिंग ऑफ द स्लाइड होती है और वो स्पेसिफिकली आपने स्लाइड्स बनानी होती है इन केस ऑफ आपके वाइवा में पूछ लेते हैं कि ठीक है स्पर्म आपको सैंपल मिला है सीमेंट का, तो आप उसको भेजोगे कैसे। तो दिस इज लाइक यू आर टेकिंग फ्रॉम एनी एरिया जहाँ से भी आपने ली, स्वैप को रब किया आपने, ठीक है, मिडल 1/3 ऑफ द स्लाइड के अंदर। 2 slides are prepared. Slides are then dried in the air and then they are placed facing each other, ठीक है, इस तरह से आपने 2 slides बनाए facing each other, उनकी sides को आपने इस तरह से करके रबर बैंड के साथ, और फिर आप उनकी slides को ड्राई करके डिस्पैच करते हो इन केस ऑफ सेमिनल एग्जामिनेशन। इस तरह से आपने सीमेंट की स्लाइड को देना, और जो लैब वर्क है उसमें उसी तरह है जैसे ब्लड वाली ड्रिल। Pipette specimen can be there if there is more amount where you can easily take the pipette, और आप ज़्यादा अमाउंट और लिक्विड अगर आपके पास ज़्यादा रहे उसमें आप उसमें पिपेट स्पेसिमेन भी ले सकते हैं और फिर आप उसको इस तरह डिस्पैच करके भेज सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली इन केस ऑफ हेयर, सिमिलरली उसको भी आप इसी तरह से विद रूट लोगे और फ्रीज करके भेजोगे। और हेयर की एग्जामिनेशन आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन केस ऑफ मोस्टली फॉर द क्रिमिनल एनालिसिस, वहाँ पे आपको चाहिए होता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें चाहिए, जिसके लिए मैं आज आपको, क्योंकि वो एग्जाम में आ जाता है, वो है कि सलाइवा में कंट्रोल्ड स्पेसिमेन कैसे लेना होता है। अब मुझे बताओ सलाइवा की कहाँ इंपॉर्टेंस होगी, किन केसेस में आप सलाइवा कर लेना चाहोगे? केसेस कौन कौन से हो सकते हैं? लाइक इन केस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट वन इज देयर बिकॉज ऑफ द बाइट मार्क्स एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। फिर फिजिकल असॉल्ट्स में भी देयर हो सकते हैं। फिर कई सिविल केसेस हैं जहाँ पे लोग नोट गिनते हुए भी नोट को छोड़ के गए और आपने देखा कई दफ़ा लोग यूज़ नहीं कर रहे तो बैठ इसको उस तरह कर देते हैं, वहाँ से उनका डीएनए जा सकता है। तो अब आपको एक चीज़ चाहिए होती है कंट्रोल, ठीक है। अब वो क्वेश्चन आपको आता है कि आप कंट्रोल को कैसे इकट्ठा कर सकते हो जब आपने सलाइवा का लेना है। और सिक्रीटर्स का हम सबको पता है कि ब्लड ग्रुप भी करते हैं। अब आपने क्या करना होता है, आप ना पेशेंट को या बंदे को जिसका आपने कंट्रोल स्पेसिमेन लेना है, यू आर गोइंग, आप उसे किसी पहले उसका अच्छी तरह गागल्स कराते हो, मुंह साफ करवाया उसका नॉर्मल सेलाइन या सिंपल वाटर से। उसके बाद आपने उसको पैराफिन की च्यूइंगम जिसमें कुछ ऐसा नहीं होता, आप उसे थोड़ी सी दोगे कि इसको आपने अच्छी तरह च्यू करना है। उसके बाद उसका आपने एक साइड के ऊपर हेड टिल्ट कर देना है और वो इस तरह मुंह करेगा तो एक थोड़ा सा सलाइवा आना शुरू होगा। आप अंदर लेके जाओगे पिपेट और आप वहाँ से सलाइवा जो है वो ड्रॉ करोगे। उस सलाइवा को फिर आपने जो बाइट मार्क्स पे या किसी भी जगह से आपको सलाइवा मिला होता है उसके साथ आपने उसको मैच करना होता है। फॉर द सीक्रेटर्स एंड ब्लड ग्रुपिंग भी हो सकती है, डीएनए भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आता होता है कि आपने कंट्रोल स्पेसिमेन कैसे ड्रॉ करना है फ्रॉम एनीबॉडी इन केस ऑफ सलाइवा। तो ये सारे बायोलॉजिकल स्पेसिमेन हैं जिनको आप भेज रहे हो। नॉन बायोलॉजिकल स्पेसिमेन में चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनी प्रिजर्वेटिव फॉर दैट। आपने पिस्टल भेजना है, आपने ड्राई किया, पॉलीथिन के अंदर डाला, लेबल बनाया, रिक्वेस्टिंग लेटर भेजा, एफआईआर भेजी, दे दिया, ठीक है। आपने नाइफ भेजा, सिमिलर आपने किया, आपने शर्ट भेजी, आपको कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालना पड़ा, आपने पॉलीथिन के अंदर डाला और आपने भेज दिया। तो नॉन बायोलॉजिकल मटीरियल का very easy to dispatch है as compared to biological. So these are all the terms and important questions and regarding the trace evidence, starting from the definition of the trace evidence to the principle of trace evidence up to the stages of collection, ठीक है। फिर collection के principles, फिर preservation कैसे करनी है, कौन सा सोल्यूशन डालना है केमिकल्स के लिए, टॉक्सिकोलॉजिकल के लिए नॉर्मल हाइपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। फिर आप आगे प्रिजर्वेशन के प्रिंसिपल कौन से हैं, आप लोगों ने नहीं बोलना। प्रिजर्वेशन के दोबारा डिहाइड्रेशन एंड फ्रीजिंग, शाबाश। फिर हमने डिस्पैच करने के लिए चेन ऑफ कस्टडी बनाई, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं? सीक्रेसी शुड बी मेंटेन्ड, श्योरर द चेन, बेटर इट इज, ठीक है। इस तरह से हम अपने सारे स्पेसिमेंस को डिस्पैच करेंगे और लैब में जो है हम अकॉर्डिंग टू ड्रिल करेंगे। लैब का आपको इसलिए
इसलिए इतना नहीं बताया बिकॉज हमारे सीरोलॉजी का जब आपके प्रैक्टिकल्स शुरू होंगे तो हम लैब में वन बाय वन ऑल द बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस वी आर गोइंग टू डील विद दैट। हम ब्लड, सलाइवा, सेमेन, हेयर, इन सब की वहाँ पे आपको सही से सिखाएंगे सारा कि आपने कैसे लेना है और कैसे इसको आपने डिस्पैच करना है और कैसे इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होंगे। सो एनीथिंग यू वांट टू आस्क आफ्टर दिस लॉन्ग लेक्चर? थैंक यू वेरी मच।